Hello students, this is Vijayalakshmi here. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Learn English with Pathfinder Institute of English Language. Till the day, I have taught you simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. And along with these tenses, I have taught you the difference between present perfect and present perfect continuous too. In today's video, we will talk about past indefinite tense. Okay, so in today's task, we will focus on the structure of past indefinite tense and its uses. आज हम past indefinite tense पढ़ेंगे. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है. मीन टू से हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हम किसी सेंटेंस को कैसे राइट करेंगे. ओके, एंड द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू लर्न टुडे दैट इज इट्स यूजेस. और दूसरी बात जो हमने आज सीखनी है वो क्या है कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे हम सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे. सो फर्स्ट थिंग, let us proceed towards its structure. How to form a sentence as per past indefinite tense. Okay students, look here. In these according to this tense, first we write subject, okay, then we use second form of the verb and thereafter object. Okay, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम सिंपल पास्ट में? This is the easiest tense in English. Okay, we will use second form of the verb. इस tense में हम कौन सी form use करते हैं? Second form of the verb. Okay, for example, he played cricket. Okay, so in this sentence, इस sentence में हमने कहाँ पे second form को use किया? Here. Okay, तो ये कौन सी structure हुई? Past indefinite tense. Okay, past indefinite tense, he played cricket. Okay, this is the affirmative sentence. Affirmative sentence means without negative or and interrogative. Okay students, for example, in this tense there is no condition that whether the subject is singular or plural. इस टेंस में कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता कि सिंगुलर के साथ हम ईडी लगाएंगे या प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे. नो, with all the subjects we use simple second form of the verb. We use second form of the verb whether the subject is singular or plural. चाहे subject singular है चाहे subject plural है, हम सबके साथ कौन सी form use करेंगे? Second form of the verb. Okay, I played cricket. They played cricket. So you can analyze that in these three sentences I used second form of the verb. आप देख सकते हो कि इन तीनों sentences में यहाँ पे subject third person है, singular है, यहाँ पे भी मैंने second form को use किया, यहाँ पे first person है तो भी मैंने second form use की, यहाँ पे third person है लेकिन plural है तो भी मैंने सिंपल सेकेंड फॉर्म को ही यूज किया. सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न. इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस मुश्किल नहीं है सीखना. दिस इज वेरी इजी. ओके, लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स हाउ टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन. दीज ऑल थ्री आर अफर्मेटिव सेंटेंस. ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है और इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है. नेगेटिव सेंटेंस. आई विल टेक द सेम सेंटेंस. मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करूंगी और उसके बाद इंट्रोगेटिव में. ही प्लेड क्रिकेट. थिंग दैट टू बी नोटेड हियर. जो बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, ओके, देन वर्ब वन, then object. Okay students, while making negative sentence, जब हम इसको negative sentence में change करेंगे we will use the helping verb did plus not.
डिड लगाएंगे, साथ में नॉट लगाएंगे। और जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है कि वहां पे अब आप सेकंड फॉर्म नहीं यूज करोगे वर्ब की, वहां पे हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। ऑलरेडी वी यूज सेकंड फॉर्म, सो नो नीड टू यूज इट अगेन हियर। हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, let us change this sentence into negative. He, what I should write here, did not. He did not. Here it was the second form, but as per the rules of negative sentence we have to use the simple form of the verb. rules के according जब did not हमने यहाँ पे लगा दिया है तो हम यहाँ पे first form of the verb लगाएंगे. First form of the verb played is play. He did not play क्रिकेट. ओके, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव. जैसे कि मैंने जब आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में, एट द वेरी इनिशियल पॉइंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सेंटेंस ही प्लेड क्रिकेट, सो वी यूज द सेम डिड. ओके, देयर आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर What would be the sentence? Sentence कैसे बनेगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? Did आगे लगेगा, Did he play cricket? At the end, put the sign of interrogation. Okay, students? Nothing to be confusing here. यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस जितना आसान टेंस कोई है ही नहीं. ओके, इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. क्लियर? और नेगेटिव में हम डिड नॉट लगाएंगे. इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम क्या बोलते हैं, डिडंट. अगर इसको शॉर्ट में राइट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, डिडंट. ओके, ही डिडंट प्ले क्रिकेट. ओके, इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, डिड ही प्ले क्रिकेट. I hope that you have understood the structure of the past simple tense. Okay, students? Okay, students. Let's proceed towards its uses. आओ अब हम सीखें कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस को यूज करना है. तो सबसे पहला यूजेस क्या है इसका, नंबर 1, I have written all the uses of simple past tense here. Okay, so one by one we will make sentences accordingly. एक एक करके हम हर एक यूज के अकॉर्डिंग इसका सेंटेंस बनाएंगे. सबसे पहले है फिनिश्ड एक्शंस. ओके, सो सिंपल पास्ट कब यूज किया जाता है, जब हम किसी फिनिश्ड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो काम पास्ट में हो गया, खत्म हो गया, अब उसके बारे में हम कोई कुछ नहीं बोलेंगे, दैट वर्क इज ओवर. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ कार लास्ट ईयर. ओके, सो ये एक्शन खत्म हो चुका है, मैंने कार खरीद ली है. कब? पिछले साल. ओके, सो आई बॉट ए कार लास्ट ईयर. दिस इंडिकेट्स द फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट. ओके, सो वी हैव दिस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम. पास्ट में कब हुआ था ये काम हमें पता है, लेकिन यहाँ हर बार हमें वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने ये कब किया था. क्लियर? हम सिंपली बोल देते हैं कि आई बॉट ए कार लास्ट ईयर. क्लियर? और एग्जाम्पल ले लीजिए इसके, वी कैन टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल.
he met me in the market। अब देखो इस सेंटेंस में मैंने आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि कब मिली थी। मैं उसको मार्केट में मिला, कब मिला मैंने ये नहीं बताया, लेकिन ये कब हुआ एक्शन, पास्ट में। He met me in the market, वो मुझे कब कहाँ पे मिला, मार्केट में मिला। क्लियर? So the first use of simple past is to indicate the finished actions, ऐसे काम जो पास्ट में खत्म हो चुके, खत्म हो गए। क्लियर? The second usage of past indefinite tense is to talk about the historical truth. For example, according to this uses, the example is India got independence in 1947. So this is the truth related to history. Okay, second example we can take बाबर। हम सब बाबर को अच्छे से जानते हैं, है ना, बहुत तंग किया है ना इसने हमें। यस, बाबर इन्वेडेड इंडिया in 1526. Okay, or we can say Babur fought the Battle of Panipat. बाबर ने पानीपत की लड़ाई कब लड़ी, in 1526। तो ये क्या हुआ, एक हिस्टोरिकल ट्रुथ हुआ कि बाबर ने इंडिया में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो कब लड़ी, 1526 में, 1526 में। सो इट इंडिकेट्स द हिस्टोरिकल ट्रुथ टू। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट यूजेस। The next usage is also very important, repeated actions and habits in the past, but they do not occur in the present. Okay? ऐसे actions को जो past में बार बार होते थे और जो हमारी habit थी अब नहीं है। For example, I always went to market with my friend. I always went to market with my friend. तो पास्ट में ये आपकी हैबिट थी कि जब भी कभी आपने मार्केट जाना होता था तब आप किसके साथ जाते थे, अपने फ्रेंड के साथ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये हैबिट आपकी चेंज हो गई, आज आप अकेले जाते हो। ओके, आई ऑलवेज वेंट टू मार्केट विद माई फ्रेंड व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हाटएवर। ओके, मीन टू से व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट योर पास्ट, जब भी आपने पास्ट की हैबिट बतानी है तब आप कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई ऑलवेज वेंट टू मार्केट विद माई फ्रेंड। My grandmother usually read scriptures. Students, what do you mean by scriptures? Scriptures means religious books. जैसे हमारे जो दादा दादी होते हैं वो पाठ पूजा करते हैं ना, तो scriptures means धार्मिक जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनको पढ़, वो मतलब स्क्रिप्चर्स मीन धार्मिक किताबें। ओके, माई ग्रैंडमदर यूजुअली रेड स्क्रिप्चर्स। सपोज करो कि आप अपने दादी के बारे में किसी को बता रहे हो कि मेरे दादी ऐसे होते थे, वो ऐसा करते थे, ठीक है, अब नहीं करते, या तो अब वो बीमार पड़ गए या फिर अब वो नहीं है इस दुनिया में। ओके, सो व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस, ओके, My grandmother usually read scriptures. मेरे दादी जी
यूजुअली क्या पढ़ा करते थे? स्क्रिप्चर्स। ये उनकी हैबिट थी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूजेस, दैट इज टू इंडिकेट a series of completed actions. Okay? ओके, अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। कई बार होता है ना कि हम बात करते हैं कि पहले मैंने खाना खाया, फिर मैंने टीवी देखा और उसके बाद मैं सो गया। तो पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, उसके बाद ये हुआ। एक सीरीज में एक्शन हो रहे हैं और वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? देयर वी विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, ही read a novel, okay, thereafter he watched TV and then he slept. ओके, सपोज आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ बेटा आज आप तुम्हारे भाई ने क्या किया, तो आप बोलोगे कि पापा, आप उसकी कंप्लेन करोगे ना कि पापा पहले तो नॉवल पढ़ा उसने, उसके बाद उसने खूब टीवी देखा और बाद में वो सो गया। मीन्स अ सीरीज ऑफ एक्शंस which got completed in the past. Okay, so here I use second form of the verb, here also I use the second form of the verb, and here also I use the second form of the verb. Clear students? Okay. Let's proceed towards the next uses and the last uses of past indefinite tense, that is to indicate unreal and imaginary present. For example, कई बार ऐसे होता है कि आपका कोई फ्रेंड आपसे पैसे मांगता है ना, तो आप क्या बोलते हो? यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरी हेल्प ज़रूर करता, अगर ऐसा होता तो ऐसा ज़रूर करता। मीन टू से आपके पास पैसे नहीं है प्रेजेंट में, मीन टू से अनरियल प्रेजेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड मनी, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हैड क्या है? हैज की सेकंड फॉर्म है, पोजेशन के लिए यूज किया मैंने। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। क्लियर? पर रियलिटी क्या है? ये अनरियल है, अगर मेरे पास होते, लेकिन है नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारी हेल्प के लिए। ओके, सेकंड एग्जांपल वी कैन टेक, इफ आई वन द लॉटरी I would buy a new car. ओके, आप बोल रहे हो कि अगर मुझे लॉटरी निकली होती, अगर मैं लॉटरी जीता होता, मेरे पास पैसे आ गए होते, तो मैं क्या परचेज कर लेता? एक नई गाड़ी, एक नई कार में खरीद लेता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है वो इससे डिफरेंट है कि आपको लॉटरी नहीं निकली, आपकी लॉटरी नहीं लगी, जिस कारण आप कार नहीं ले पाए। Okay students, so I hope that you all well understood today's lesson, the use and structure of past indefinite tense. It is very simple. Where to use past indefinite tense? To denote the finished actions, the actions जो कि past में ही over हो गए। Okay, second use, जब हमने historical truth की बात करनी है कि ऐसा इस ईयर में हुआ था, ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल कब बनवाया, मीन्स हिस्ट्री की बात करनी है। ओके, थर्ड यूजेस रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स इन द पास्ट। वी यूज द वर्ड यूज्ड टू आल्सो टू डिनोट आवर हैबिट्स इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड यू दैट आई वेंट टू मार्केट विद माय फ्रेंड्स, ये भी सही है। और अगर मैं इसको अगर मॉडल यूज करूँ इसमें, यूज टू, आई यूज टू गो टू मार्केट विद माय फ्रेंड्स, तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगते हैं यूज टू के बाद। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि सिंपल पास्ट यूज करना था, तो मैंने क्या बोला? आई वेंट टू मार्केट विद माय फ्रेंड्स। ओके,
नेक्स्ट इज अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, जब हमने बताना हो कि एक के बाद दूसरा एक्शन कैसे खत्म हुआ, होता गया, क्लियर? देयर वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड द लास्ट यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट इज अनरियल एंड इमेजिनरी प्रेजेंट, कुछ जो प्रेजेंट आपका नहीं है, ठीक है, इमेजिन करने के लिए कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ यू अंडरस्टूड द today's lesson and you like my videos, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अच्छे समझ में आते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखें टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, एंड यू कैन सेंड योर कमेंट्स टू, आप मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।